when you have prepared in your mind that this is the only way that you will get a rank, and that's not only me, there are many other students who are giving both the groups, right? So it's not me who is in that position, everybody is in the same level. So we have to basically make a strategy that we can achieve throughout these 8 days, and the only strategy for that is revision. I think when we keep in mind that there's no other option that of giving one groups, then you don't even think कि एक group दे देते हैं, next group बाद में दे देंगे. See, it's impossible to complete 100% of the syllabus on the last day. So पहले का जो 2-3 रिविजन होता है उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आप गेन कर चुके होते हो कि हाँ मेरे को कुछ पोर्शंस है जो कि ईजी लगता है, वो मेरे को बहुत अच्छे से आता है. And then you have also attempted mock test papers and all. So you know the paper pattern that is going to come tomorrow in the exam. So you have to make a strategy to cover those 60 to 70% of the syllabus that would make you attempt 100 marks in the paper. I think we are in a professional course, and अब स्कूल टाइम तो नहीं है कि जो आपको कराया गया या जो आपके मटेरियल में है वही आएगा. इट्स वी आर इन फाइनल एंड इट्स वेरी श्योर शॉर्ट कि मतलब 30% ऑफ द सिलेबस तो आपको ऐसा दिया जाएगा कि मे बी आपको पता भी नहीं चले कि ये कौन से चैप्टर से. बट वी हैव टू प्रिपेयर इन सच अ वे दैट वी कनेक्ट ऑल द चैप्टर्स टुगेदर. आई वुड से कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन मैराथन्स फॉर द practical subjects, you try to solve it with your own hand as many times as possible. Okay, guys, welcome. And today we have one of the student, Vidisha Poddar. Welcome, Vidisha, and congratulations to you for securing all India rank in CMA final, rank 38. Congratulations to you, by us, by me, by entire SGC community. आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई. Thank you, sir. Thank you so much. It was all of yours guidance that has helped, definitely. You're welcome, Vidisha. Sorry, I pronounced your name wrong. It's Vidishi. And now my first question to you is, like, from where you are, which city? I'm from Asansol, but I have completed my college, and I've completed my tuitions also for CMA intermediate and finals from Kolkata itself. Okay, so you studied from Kolkata and you're from Asansol. So you also tell me now, मैं थोड़ा ना बैक पे जाऊंगा प्रिपरेशन की जर्नी में, जिससे कि स्टूडेंट्स को पूरा स्ट्रेटजी पता चले. जैसे नॉर्मली कैसे ये ख्याल आया आपको कि दोनों ग्रुप देना है और रैंक लाना है, ऐसा आपको कैसे लगा, कब लगा? सर, इंटरमीडिएट में भी मेरा मोटिव था टू गेट अ रैंक, बट आई मिस्ड इट बाय अ फ्यू मार्क्स. सो फाइनल्स में तो आई वाज श्योर शॉट कि अगर ग्रुप देना है साथ में तो अटेम्प्ट भी डेफर नहीं करना है और रैंक भी लेकर आना है, चाहे व्हाटएवर आई हैव टू डू फॉर दैट. सुपर, दैट मींस पहले से डिटरमाइंड है. वेरी गुड. सो व्हाट डू यू थिंक कि जब अपने एक ग्रुप की तैयारी करते हैं और दोनों ग्रुप की तैयारी करते हैं, उसमें पहले से क्या माइंडसेट में डिफरेंट रखना पड़ता है? इफ यू हैव टॉक्ड विद योर फ्रेंड्स, they must have told you something कि मेरे से तो नहीं हो रहा, something like that. तो आपके अंदर क्या था ऐसा जो डिफरेंट था in the preparation journey? There are a few of my friends that have continuously asked ki, 8 days we have continuous exams, so how will you manage that? It's a huge burden because we usually get only 6 to 7 hours to study after coming back from the exams. But when you have prepared in your mind that this is the only way that you will get a rank, and that's not only me, there are many other students who are giving both the groups, right? So it's not me who is in that position, everybody is in the same level. So we have to basically make a strategy that we can achieve throughout these 8 days, and the only strategy for that is revision. I think when we keep in mind that there's no other option that of giving one groups, then you don't even think कि एक ग्रुप दे देते हैं, नेक्स्ट ग्रुप बाद में दे देंगे. Exactly, मतलब अपने माइंड में ऐसा चलता है कि ऐसा ही एग्जाम है तो ऐसे ही पढ़ना, ऑप्शन ही नहीं है. वेरी नाइस.
So let's talk more about that 8 day strategy, revision strategy. What was exactly that you followed? See, it's impossible to complete 100% of the syllabus on the last day. So पहले का जो 2-3 रिवीजन होता है उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आप गेन कर चुके होते हो कि हाँ मेरे को कुछ पोर्शंस है जो कि इजी लगता है वो मेरे को बहुत अच्छे से आता है. And then you have also attempted mock test papers and all. So you know the paper pattern that is going to come tomorrow in the exam. So you have to make a strategy to cover those 60 to 70% of the syllabus that would make you attempt 100 marks in the paper. Yes. तो मतलब आप मार्क्स 100 के लिए प्रिपेयर करो. मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप 50 के लिए प्रिपेयर करो या 60 के लिए प्रिपेयर करो. यू प्रिपेयर फॉर 100 मार्क्स ऑफ द पेपर, बट आप स्ट्रैटेजी ऐसा बनाओ कि आपका 60 to 70% ऑफ द सिलेबस से वो 100 मार्क्स आ पाए. And I'm not telling you to do this planning from the beginning of the revision. No, please do 100% of the syllabus from the starting. Only for the last day you make a strategy कि हाँ मतलब ये chapters करने से I can attempt 100 marks of the paper. Right. So let's go backwards now. So when did you complete your syllabus and from when you started your revision? Okay, I completed my syllabus in the first or second week of March, and I have taken only 6 subjects, tuitions for 6 subjects, and 2 subjects I have done self-revision. Okay, so I have started my revision by mid of March, and matlab that was a continuous revision that I now no parties and no घूमना फिरना, only you have to study because 3 months are there and you have to study because there's no other option. मतलब I was very sure कि मेरे को December attempt नहीं देना है. You cannot just open the books again और फिर वो tax का amendments वगैरह वापस से मैं नहीं पढ़ सकती, तो मेरे को December attempt नहीं देना है. So when you started this revision from March, means you completed your course by February, right? No, I completed my course by mid of March. Okay, by mid of March. All right. So let's go backward again. So from when you started your classes, like okay, so I've cleared my intermediate in June 2023. After that, I was searching for articleship and all. So I started my classes from December 2023. I took the first class of SFM, and after completing SFM, I came to SCM because these are the 2 subjects which are very huge, I guess. So during my articleship period, I have completed 4 subjects, and I completed my articleship in January. So I had 2 subjects and 1.5 months, like February, whole of February and half of March. So in those 45 days, I have completed the rest 2 subjects as well. Great. So let's chop down the journey once again. So in June 23, you cleared your intermediate. Then you were searching for articleship. And in December 23, you started your classes from SCM and SFM. And after that, you continued your studies with articleship. And that articleship started when? When did your articleship start? November 2023. So from November to most probably January or so. January, yes. So okay, so till January you continued that, and I think you got extra leaves or what? Yes, sir. I completed my articleship in January, and the next attempt was June. So I have February, March, April, and May when I was only studying. I didn't have to go to office every day. Okay, so what I'm trying to understand is 15 months articleship is required, na? So you did 15 months full? November, December. कैसे हुआ? 12 to 14, हाँ 15 हो गया, right? Correct. So you did 15 months of articleship completely, and from February you took off. You started studying, and your first 2 subject was SCM and SFM. And what were the next 2? The next 2 was CFR and law. Then after that, direct tax and indirect tax, and Well- audit and SPMBV almost got covered, while I was studying law and while I was studying SFM, because majority of the portions are very common there.
So you So could I manage. had watched, yes, so I watched some marathons along so that, Very, very nice. So this was quite interesting. So I could see in your mark sheet, I have your mark sheet also, that you have got very good marks in which subject? I think I got the highest marks in audit, which was a self-studied subject. Wow, very nice. How it happened actually? What was the secret behind that? Sir, I would just say my intermediate preparation for audit was very good, and that helped me in the finals as well. Okay, so your highest marks is also there in paper 16. Paper 16 is what? Can I open my mark sheet? Just a minute. SCM also I've got my marks. Paper 16 is SCM, na? Yes, paper 16 is SCM. I got 74 in that, and in audit I got 75. And in audit you got 75. Yes, group 3 highest marks is in paper 16. Yes. So, बताइए क्या राज है पेपर 16 में इतना मार्क्स लाने का? कैसे Sir, आया? I think जब मैंने आपका क्लासेस भी कर रहा था तो it was very early. Like I took the first two classes of SCM. But after that एक बार एक होता है ना कि आप भूल जाते हो इतना पहले पढ़ा था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि जब आप लिखा भी रहे थे तो सारा सम मैंने कॉपी में कर रखा था, सब कुछ अपने हाथ से किया था। ऐसा नहीं कि मैं बस एक बार वीडियो देख ली एंड फिर सम्स बस नोट डाउन कर ली, नहीं, मैंने एक सम खुद से किया था। उसके बाद वहाँ पर आपने क्वेश्चंस के ऊपर नोट्स वाला एरिया दे रखा है, तो जब आई हैव डन माई फर्स्ट रिविजन आई हैव रिटन आउट द डिफरेंट पॉइंटर्स कि क्या क्या डिफरेंट है इस सम में। Yes. एंड देन यू हैव ऑल्सो अपलोडेड वन वीडियो जहाँ पर आपने CMA मैथ से भी कवर कराया एक बार ऐसे फास्ट थ्रू रिविजन की कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारे, कौन कौन सा सम्स हमारे मटेरियल में, हमें वो तो देखना चाहिए कि मतलब हाँ वो सब कवर था आपके मटेरियल में भी, बट अंटिल अनलेस वी गो टू द इंस्टीट्यूट्स मटेरियल वी आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि क्या पता यहाँ से कुछ आ जाए, मैंने तो छुआ भी नहीं है इसको। और वो वीडियोस से भी आपका काम हुआ। करेक्ट। So what actually you would like to recommend about SCM to others? What was the unique learning you had? Unique learning experience, I would say. Yes, I would say कि instead of wasting time in marathons for the practical subjects, you try to solve it with your own hand as many times as possible. क्योंकि एक बार भी करने से आपको जरूरी नहीं है कि आपको वो सम में क्या डिफरेंट है वो याद आए, बट जब आप वहाँ पर नोट्स एरिया में लिख देते हो कि ये सम में, मतलब जैसे कि आई रिमेम्बर दैट गोल्डन येलो वाला एकर वाला एक सम था जिसमें मैं बार बार मिस्टेक कर रही थी, तो वो जब मैंने वो नोट्स एरिया में लिखा था एंड वो मार्क भी कर रखा था, तो एग्जाम के लास्ट डे भी मैं वो देखी कि हाँ ये ऐसे होगा, तो इट रिकॉल्स मी टू द कि हाँ ये प्रोसेस है। मतलब यू डोंट हैव टू लर्न द सम बट यू हैव टू रिमेम्बर कि हाँ इसमें डिफरेंट क्या है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि द सेम टाइप ऑफ सम कम्स इन द एग्जाम एंड देन यू आर वेस्टिंग 40 to 45 minutes of your time in that particular sum only. You have to complete the whole paper. So SCM में जैसे आपने एग्जाम दिया होगा अगर आपको याद है, तो मतलब सबसे डिफिकल्ट क्या पोर्शन होता है, मतलब आपको क्या लगा? मेरे को लगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम इजी आया था, बट क्योंकि हम लोग एक असम्पशन बना के रखते कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत टफ है, तो इजी से सम में भी हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे थे थिंकिंग कि इसमें क्या डिफरेंट है या क्या। आई वुड से कि इजी सम को भी हम लोग ऐसा सोचते कि नहीं इसमें कुछ तो पक्का गड़बड़ है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे आजकल क्या हो रहा है, कुछ क्वेश्चन नए आ जाते हैं जैसे SFM SCM में, और ये खोजने जाए तो पता चलता है कि ये CA के मैट से आ रहे हैं। तो उसको लेकर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? मतलब आपने कुछ ऐसा किया था कि मतलब आप कॉन्सेप्ट के बेस पे चले गए थे? नहीं, कॉन्सेप्ट्स लास्ट डे पे आप सम्स तो एक देख नहीं पाते हो, तो आप कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा रिवाइज करते हो क्योंकि वो आपको MCQ में भी फिर हेल्प करता है फॉर सॉल्विंग द MCQ और जो डिफरेंट टाइप के सम्स आते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलता है बाय रीडिंग द नोटबुक जहाँ पर आपने लिखा रखा है कि हर एक का मतलब क्या होता है विद एन एग्जाम्पल, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाता है।
और फिर मैंने कोई डिफरेंट मटेरियल, कोई और इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो नहीं फॉलो किया था, बट आई थिंक लास्ट मिनट में हम लोग का इंस्टीट्यूट एक वर्कबुक रिलीज किया था विच वाज अ बुक ऑफ वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस। तो मैंने जब वो सॉल्व किया था तो उससे मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिला था कि नहीं, इट्स नॉट द इफ द सेम क्वेश्चन इज गोना रिपीट इन द एग्जाम आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। अगर दूसरा भी आता है तो मेरे पास वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि आई कैन गो विथ द thing that I know and try to at least conclude the question. मीन्स आपको वो वरी नहीं कर रहा था फैक्ट कि कुछ नया आ गया तो क्या होगा, राइट? करेक्ट। लेकिन मैं जनरली स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही इंकरेज करता हूँ जो आप किए, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, नए क्वेश्चन देख के बोलते हैं कि अरे ये यहाँ से आ गया तो इसका सारा प्रैक्टिस करो। तो what do you think, what is your advice to such students? I think we are in a professional course and अब स्कूल टाइम तो नहीं है कि जो आपको कराया गया या जो आपका मटेरियल में है वही आएगा। इट्स वी आर इन फाइनल एंड इट्स वेरी श्योर शॉर्ट कि मतलब 30% ऑफ द सिलेबस तो आपको ऐसा दिया जाएगा कि मे बी आपको पता भी नहीं चले कि ये कौन से चैप्टर से। मतलब आपको 1 मिनट लग रहा है ये सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो दूसरा मिनट आपको लग रहा है कि ये कोई और सब मतलब चैप्टर से क्वेश्चन है। बट वी हैव टू प्रिपेयर इन सच अ वे दैट वी कनेक्ट ऑल द चैप्टर्स टुगेदर, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ भी बहुत बार डिफरेंट चैप्टर्स का भी सम मतलब मिक्स एंड मैच करके दे देते हैं। तो अब उस कनेक्ट को कैसे बैठाएं, मतलब हाउ वुड यू गाइड स्टूडेंट्स टू मेक दैट कनेक्ट? आई थिंक प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल रहा है, मेरे टाइम पे ठीक है वर्कबुक रिलीज हो गया था तो मेरे को एक और न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल गया। वी कैन प्रैक्टिस मॉक क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आई थिंक आई हैव डन 3 मतलब जून 2022 जब 3 का जो टर्म था, जब से न्यू सिलेबस स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर मैंने दिसंबर 2024 का हर एक टर्म का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। ओके, सो अगेन मैं आता हूँ एक एक करके। वर्कबुक आपने बोला, तो वर्कबुक से एग्जाम में आता है क्या, कि वर्कबुक सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस और सेटिस्फेक्शन के लिए? हम लोग के टाइम पे तो बहुत लेट रिलीज हुआ था, सो आई डोंट नो अगर दिसंबर 25 अटेम्प्ट में उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आए तो, बट मेरे टाइम पे आई रिमेम्बर कि हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन था जो वर्कबुक से था। और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पास्ट पेपर्स आपने सॉल्व किया वो पूरा टाइम बाउंड किया कि बस एक क्वेश्चन देख देख के सॉल्व किया? नहीं, जो मॉक क्वेश्चंस होता है, जो हम लोग के इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट पेपर्स निकाला है, उसमें से मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए किया था, बट एक पेपर मैंने टाइम बाउंड किया था। एंड वैसे ही पास्ट ईयर का भी मैंने मतलब पूरा पेपर को टाइम बाउंड नहीं किया था, बट मैं इंडिविजुअल सम में मैं देख रही थी कि मेरे को इस सम में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स देना, इससे ज़्यादा आई विल नॉट गिव दिस सम। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स का कैसे प्रैक्टिस किया? बिकॉज उसमें तो क्वेश्चन पेपर पुराने वाले काम नहीं आते। नहीं, डायरेक्ट टैक्स का आई थिंक जहाँ से मैंने ट्यूशन लिया था उन सर ने टॉप 60 क्वेश्चंस एंड टॉप 30 क्वेश्चंस का हम लोग को पीडीएफ दिए थे, और उनका जो मटेरियल भी था उसमें भी हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस था हर एक टाइप का कि उसमें से प्रैक्टिस कर सकते। एंड मेरे को लगता है कि डायरेक्ट टैक्स में मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि मेरे को प्रोविजंस ही में कन्फ्यूज हो जा रही थी मैं। तो मेरे को पता था कि अगर मेरे को प्रोविजन याद रहेगा तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी, क्योंकि आई नो माई कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड फर्स्ट। वेरी नाइस। सो व्हाट डू यू थिंक कि इंटर का पढ़ाई फाइनल में आपको कैसे हेल्प किया? सर, इंटरमीडिएट बेस बना देता है। जैसे कि अगर मैं कॉस्टिंग की भी बात करूं तो अब कॉस्टिंग में आपको लेबर, मटेरियल ये सब वापस से फाइनल्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, बट इट इज़ गोना हेल्प यू इन फाइनल्स एज वेल, बिकॉज आपको अगर बेसिक से नहीं पता, जैसे कि अगर हमें बेसिक से अकाउंटिंग का जर्नल एंट्री पास करना और लेजर नहीं पता होगा तो हम CFR कैसे पढ़ेंगे? राइट, वेरी नाइस। इंटर इज द बेस। तो इंटर में सिंसियरली कोई नहीं पढ़ा तो फाइनल कैसे पढ़ेगा, आप बताओ? ऐसा नहीं है, कुछ पॉसिबल नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए क्या? हाँ, यू हैव टू रिवाइज इट थॉरली एंड मतलब give Marathon more time to your studies and all. हाँ, ओके, थ्योरी के लिए कुछ बताइए, कैसे याद करा जाए, कैसे मेमोराइज? I'm very weak in learning theory. The only reason that I took मतलब ऑडिट में तो मैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगा कर ही गई थी, एंड लॉ इज़ वेरी वीक ऑफ
I cannot learn things. फिर भी आप क्या टेक्निक लगाए थे? चार्ट्स बना सकते हो आप छोटा छोटा, जैसे कि आप मेमोराइज कर सकते हो कि अगर आपको 5 पॉइंट लिखना है तो आप 5 पॉइंट का कोई एक्रोनिम बना लो, या 5 पॉइंट आप ऐसे बार बार रिपीट करते रहो शॉर्ट शॉर्ट में, ताकि आपको याद हो जाए। इसकी SPMBV में आई रिमेंबर आई हैव ओनली चोज दैट इलेक्टिव पेपर बिकॉज उसमें 60% ऑफ द पेपर इज प्रैक्टिकल। बट अगेन आप SP तो मतलब स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप पूरा तो छोड़ के जा नहीं सकते, आपको कुछ तो लर्न करना ही पड़ेगा। तो वो एक्रोनिम्स भी बना रही हूँ, एक्रोनिम्स भी बहुत बार भूल जाती हूँ कि क्या एक्रोनिम था इसका। तो दीज आर ओनली द टेक्निक्स। जितना आप लिख लिख के वो छोटा छोटा चीज़ लिख लिख के, जैसे कि ये टॉपिक है इसका क्या 5 to 6 पॉइंट्स अगर आप याद करने का कोशिश करो, पूरा पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है। नॉर्मली मैं बाकी सबको एक बार सजेस्ट कर देता हूँ, याद करने का तरीका क्या होता है। मतलब आप पहले उसको समझो, छोटा करो, अपने भाषा में लिखो, और फिर उन सबको कनेक्ट करो, एक पेज में लाओ, समराइज करो। अगर समराइज नहीं करेंगे तो वो याद नहीं होगा। वो समरी नोट्स में चार्ट जैसा कुछ बनाओगे तो एक टॉपिक दूसरा टॉपिक कनेक्ट होके जब सामने छोटा जगह पे दिखता है, मैक्रो व्यू बोलते हैं ना, जूम आउट करके व्यू दिखता है ना, जैसे गूगल मैप में एक जगह से दूसरा जगह जाना है, तो जब जूम आउट करके आप पूरा देखते हो कि A से B जाने में कहाँ से कहाँ होते हुए जाएंगे, तो एक बार में रास्ता याद हो जाता है। मतलब जैसे आपको कोई एक जगह से दूसरा जगह जाना है, आप जूम आउट करके पूरा देख लीजिए, तो बार बार आपको लेफ्ट राइट खोजना नहीं पड़ता। आपको पता होता है कि अब लेफ्ट ही जाना है, राइट ही जाना है, सीधा जाना है। तो 80-90% वही समझ में आ जाता है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो जूम इन करके ही चलते रहते हैं, बस अभी लेफ्ट जाना है, अभी राइट जाना है, उनको मैक्रो व्यू नहीं पता होता। मैक्रो व्यू पकड़ में आते ही मेमोरी क्रिएट हो जाती है। और ये चीज आई वुड लाइक टू गाइड कि जिस तरह से पढ़ाई करते हैं ना, जितना लगन से, जितना मेहनत से, ठीक है, हम लोग अपने जब आगे जाके जॉब करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, हम लोग वो मेहनत को भूल जाते हैं। हम लोग लाइफ को ग्रांटेड लेने लगते हैं। लोग बोलते हैं अब तो इतना बजे तक ही काम करना है, बस फिर छोड़ देते हैं। और जहां इंसान ऐसे सोचने लग जाता है, उसका लाइफ में ग्रोथ नहीं आता, स्टेगनेंसी आता है। तो अगर आप जो याद करने का टेक्निक्स है, जो पढ़ने का टेक्निक्स है, जो नया चीज ट्राई करने का टेक्निक्स है, वो सब को अपने काम में भी लगाओगे तो आपका प्रोग्रेस फास्ट होगा। So that's just a piece of advice which I always give to all my students. So what do you think? Means आपको SJC के बारे में कब पता चला, कैसे पता चला, थोड़ा हमारे बारे में? Searching for my cost tuitions when I got to know about SJC, and फिर मैंने I think एक कॉन्टैक्ट किया था आप लोग के यहाँ पर किसी से, तो वो मेरे को पूरा मतलब गाइड कर रहे थे कि आपका एग्जाम्स कब है, आप अभी SCM का ट्यूशन ले रहे हो तो आप बाकी ट्यूशन्स कब लोगे, आप क्यों चाहते हो कि आप उसी टर्म पे एग्जाम दो, आपका क्या प्रिपरेशन है वगैरह। एंड नॉट जस्ट दैट, बट बाद में भी मेरे को याद है जब दिसंबर का मंथ चल रहा था, एंड आई वॉज श्योर कि मेरे को जून में एग्जाम देना है, बट मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ था। आई सेड कि मेरा 4th सब्जेक्ट चल रहा था उस टाइम पे। तो आई रिसीव्ड द कॉल एंड दे वर आस्किंग कि आपका जून में एग्जाम है एंड व्हाट्स अप प्रिपरेशन। सो दे ट्राइड टू कंसोल मी कि अच्छा आप जून में एग्जाम अगर नहीं दे पाओगे तो कोई बात नहीं, बट आप प्रिपेयर करो, अभी भी हड़बड़ी में मत देना जून में एग्जाम, बिकॉज अटेम्प्ट मैटर्स। तो द गाइडेंस एंड थ्रू आउट वो सब चीज़, आई वुड से हैट्स ऑफ टू योर टीम, दे वर कनेक्टिंग फ्रीक्वेंटली, एंड फिर एग्जाम्स के टाइम पे भी, आफ्टर द एग्जाम्स ऑल्सो दे हैव कनेक्टेड। Yes. And you came to us in finals directly, right? Yes, sir. Okay. And you studied only SCM or other subjects also? No, sir, only SCM. All right. So I took classes of Shivangi ma'am from your website as well. Okay. And what about mock test? You gave mock test with us? No, sir, I didn't give mock test series. It started from 1st of April. I was about to give that. बट मतलब आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरा पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ था, मतलब रिविजन नहीं कंप्लीट हुआ था एक बारी भी। कोई नहीं है, तो एनीवे आपका प्रैक्टिस इतना तगड़ा था कि आप ओवरकम कर गए, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर पासिंग और आफ्टर ऑल इंडिया रैंक?
But I was very mentally prepared कि I'll be clearing the exam. But one thing that was eating my head is I'll be getting an all India rank or not. I prepared myself as such that I'll end up in top 10. So when I opened the rank sheet and I couldn't see my name in the top 10, so it was a little disappointing for me. But anyways, my mom was always there to support me कि कोई बात नहीं, ये तो आया. टॉपर माइंडसेट ऐसा ही होता है, 99 इज नॉट इनफ. वेरी नाइस. और आप आर्टिकलशिप कहाँ पे किए थे, मतलब किस सेक्टर में किए थे? I did in a CA firm, in a mid-size CA firm, क्योंकि मैं जब नवंबर में in October when I was researching for my articleship, I got to know that my mind was very mentally कि मेरे को ITC में जाना है या फिर IOCL में जाना है. These were the only two options. क्योंकि मेरे साथ साथ में कॉलेज भी चल रहा था, तो I was not very ready to leave Kolkata. But ITC and IOCL में when I contacted them, they were कि December में will be opening up for vacancies. So I didn't wanted to waste any more time in waiting for the vacancies to open up and then join. So I joined a CA firm, and when I joined also they were very they told me in the first hand only that if you're joining here, don't expect that we'll be allowing you to leave in the mid. Correct. So now what are your plans for future? So I'm preparing for the placements right now. I want to join a manufacturing industry as of now, because I think cost analysis or cost जो भी हम लोग ने पढ़ा है वो सब apply सबसे ज़्यादा manufacturing industry में हो सकता है. अगर I'll be getting a good opportunity in the placement, then well and good. Otherwise, I will try an off campus. All right. So are you planning to do CA along with your CMA? No, I'm planning to do actuarial science basically. Not any other professional course, but actuarial science, because my family members are very, they wanted me to do actuarial science before as well. So I just wanted कि अब ठीक है, अब मेरा हो गया है, तो I'll be giving them what they want now. Chalo, very nice, very nice. Great. It was very, very warm speaking to you, and I wish you all the best and stay in touch with us as much as possible. We'll be creating alumni group so that you are able to connect with all the past students also, take their help to grow yourself. We'll organize various sessions with alumni. So be a part of it as much as possible. Definitely, sir. And thank you so much for all your help and guidance. एक ask है कि देखो क्या होता है, ये community हम लोगों का छोटा सा है, but they really need people like you. So what I need is, if you are available right now, if you're not so busy, then why not spend some time with the students who are going to appear in the upcoming talk, so that from your lively guidance, they would be also able to be part of this community. So if you're interested, let me know. So what we will do is we'll connect you with several students so that they can also take guidance from you. And one of my very close student is also from Asansol, and she is feeling stuck. She has not been able to pass exam from last 5 attempts. So maybe according to me she is doing fine, but something is happening to her in the exam hall. So if you are able to guide her, maybe by meeting her, because you are in Asansol, she is also in Asansol, so it will be really helpful for her as well. Sure, sir. I'll be glad to help all those students then. Yeah. Even I will wish that what I couldn't achieve, they are able to do that. Yes. So I will connect her with you, and sure. Let's be in touch. Okay, भूलना मत, चिट्ठी लिखना मेरे को, याद रखना. No, sir. कभी यहाँ आओ. Yes, sir. Sure. और हाँ, रास्ते में दिख जाए तो पैर नहीं छूना, खाली हाथ मिला. Sure, so I'll be visiting Kolkata next month, so I'll see if I can come with Anand. Yes, you should. And if you need help in your preparation of CV and organizing your skills
as per the job that you're willing to apply for. So being a rank holder, we will help you in doing that without any fees, or because there's a separate team which we have deployed to help students to do that. Okay? Okay. So for you, we will be doing that without any cost. And you should also, once you are through with your CV, you should show it to Mitu ma'am, so that she will get it checked with our team. And जो भी हमारे सीनियर हैं वो उसको देखते हैं, वो आपको करके गाइड करेंगे. Sure, sir. Sure, sir. Thank you so ठीक है? much. Yes, sir. चलो, बाकी अभी और भी काम है, बट हम लोग एलुमनाई में मिलेंगे फिर. हाँ, sir. Okay, Definitely. bye. Bye. Take care. All the best. Thank you. Thank you.